Very good morning to one and all present here. I am Abhidasha Nahata, your social science teacher. So class, today we all are going to start a new chapter of your geography book. The name of your chapter is Agriculture. So class, from our primary classes, we are talking about agriculture. We are studying about agriculture, and we know India is a very rich country in the context of agriculture. It has a very fertile land, agriculturally very important country, as two-thirds of our two-thirds of our population dependent upon agriculture for their livelihood, etc., etc. We talk about agriculture so much, okay, and we know agriculture plays a very significant, very prominent role in our lives. So, class, in this chapter, before starting this chapter, take an overview of this chapter, what we are going to study in this chapter. We are going to talk about the types of farming, different types of farming. We will talk about different types of farming. After that, we will talk about the cropping pattern, different cropping patterns. We will talk about it, the cropping patterns. What are the major crops of India? ठीक है, staple food क्या है, major crops क्या है. After that, technological and institutional reforms, some technological and institutional reforms of India related to the agriculture sector. We will talk about it. Impact of globalization on agriculture. What was the impact of globalization on impact of globalization on agriculture? All these topics which we will cover under this chapter. Okay, so what is agriculture? Agriculture, it is a primary activity of growing crops, fruits, vegetables, flowers, and rearing of livestock. What is agriculture, or you can say farming? What is farming? What is agriculture? It means it is a primary activity of growing crops. Different we can grow different crops, we can grow different fruits, vegetables, flowers, and rearing of livestock is also considered under agriculture. Rearing of livestock, cattle को rear करते हो, ठीक है, आपके sheep हो गया, गोट हो गए, ठीक है, बुल, काउ, ये सब भी आपका एग्रीकल्चर में ही आता है. So class, as you all know, agriculture is a primary activity which produces food that we consume. The food that we consume, most of the food that we are consuming comes from agriculture. Most of the products which we are using are using agriculture raw materials for the making of that particular product, produces raw material for various industries. For example, the cotton cloth which we are using, which we are wearing, come from obviously agriculture product है. जूट जो हम यूज करते हैं, फाइबर्स यूज करते हैं, ठीक है, या फिर आप शुगर बोल लीजिए, गुड़ जैगरी बोल लीजिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं. कॉर्नफ्लेक्स हो गया, आटा हो गया, ठीक है, फ्लावर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल हम क्या यूज कर रहे हैं? एज अ रॉ मटेरियल हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ही, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट. ठीक है, so agriculture is a primary activity of growing crops, fruits, vegetables, flowers, and rearing of livestock. And as it produces most of the food that we consume, it is a very important activity. It produces raw material for various industries. So now there is a question for you. Will you please name some industries based on agricultural raw material? So there are so many industries which are using agricultural raw material for their products: cotton industry, jute industry, sugar industry, jaggery industry, oil industries, food industries, textile industries. So many industries are there. Okay, so now types of farming. So agriculture is an age-old economic activity in our country.
And over these years, cultivation methods have changed. Obviously, cultivation methods have changed significantly, and it all depends upon the characteristics of physical environment, technological know-how, and socio-cultural practices. अब इतने टाइम में इंडस्ट्रीज जो है काफी चेंज हो गई है, काफी चीजें आपकी न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, मेथड्स चेंज हो चुके हैं, environment काफी चेंज हो चुका है comparatively. तो farming varies from subsistence to commercial farming. Now what is like different types of farming? Subsistence farming and commercial farming. We will talk about subsistence farming and commercial farming. So at present in different parts of India, the following farming practices are practiced, following farming systems are practiced. These are primitive subsistence, intensive subsistence, and commercial farming. So now what do you mean by the term, or you can say what is primitive subsistence farming? Under subsistence farming, two types of farming are there: primitive subsistence and intensive subsistence. So what is subsistence? Subsistence means subsistence means something which is like essential, or the conditions of remaining in existence. This is known as subsistence. Okay, and under this subsistence farming, two types of farmings are there which we are following in India: primitive subsistence farming and the intensive subsistence farming. What is primitive subsistence farming? Primitive, primary. Okay. So this type of farming is still practiced in few pockets of India. Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land. Small patches of land में हम क्या करते हैं? Primitive subsistence farming को practice करते हैं with the help of primitive tools. Primitive tools, primary tools like hoe. Just look at this. This is hoe. Dowel. This is dowel. Digging sticks, family and community labor. ठीक है, स्पेशली जो ये आपके ओल्ड टूल्स है उसको यूज करते हुए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं. दे आर यूजिंग हो, डाउ, डिगिंग स्टिक्स, और उनका लैंड जो है इतना बड़ा भी नहीं होता है फील्ड, सो दे आर यूजिंग फैमिली या फिर कम्युनिटी लेबर का यूज करते हुए क्या कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं. This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil, and other suitable environment condition. Monsoon कैसा है, मतलब for irrigation they are totally dependent upon rain. Natural fertility of the soil, soil की fertility कैसी है, natural fertility कैसी है, और other suitability क्या है, other जो environmental conditions हमें crops को grow करने के लिए चाहिए वो कैसी कंडीशंस हैं, उसके लिए क्या है, ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है टोटली इस पे डिपेंड करता है. मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द अदर suitable environment conditions. This type of farming is also called slash and burn agriculture. In class 8 you studied about slash and burn agriculture. What is slash and burn agriculture? Farmers clears a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. Now in slash and burn agriculture what happens, एक जो farmer है वो क्या करता है, कोई भी cereal crop या food crop को grow कर लेता है, and after that जब grow हो जाता है, produce कर लेते हैं, harvesting हो जाती है, वो क्या करते हैं, वो हार्वेस्टिंग के बाद obviously एक कोई पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो हो चुके हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. जो भी न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलर क्रॉप को चाहिए होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स उस क्रॉप में चले जाते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. तो वो क्या करते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं.
वो क्या करते हैं, दूसरे पैच ऑफ लैंड में चले जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। एंड उस और थोड़े टाइम तक क्या करते हैं, वो नेचुरली उस सॉइल की फर्टिलिटी को रिन्यू करने के लिए लीव कर देते हैं, वहां पे और कोई भी टाइप की फार्मिंग नहीं करते हैं वो लोग। Okay, so this is called slash and burn agriculture, or you can say primitive subsistence farming. क्या करते हैं, एक farmer है, he is using, this is a patch of land where he is like growing the crops grow हो गए, एक पर्टिकुलर सीजन में उसने क्रॉप्स को ग्रो कर लिया, ठीक है, क्रॉप्स ग्रो हो गए, हार्वेस्ट हो गए, और हार्वेस्ट करने के बाद ये जो लैंड है उसको वो लीव कर देते हैं, ठीक है, और शिफ्ट कर जाते हैं, कहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं, दूसरे पैच ऑफ लैंड पे वो शिफ्ट कर जाते हैं, और वहां पे वो कुछ मंथ्स के लिए एग्रीकल्चर या कुछ ईयर्स के लिए बोल सकते हो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। और उस टाइम तक ये जो पहले वाली जो लैंड है वो क्या हो जाती है, रेप्लेनिश हो जाती है, रिन्यू हो जाती है। Okay, and this is called slash and burn agriculture, or you can say primitive subsistence farming. So there are other names of slash and burn agriculture. क्या names हैं slash and burn agriculture के? Slash and burn agriculture is called झूमिंग in असम, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है आपके, असम, मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम में हम इसे झूमिंग के नाम से जानते हैं। दीपा, बस्तार, छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है बस्तार, वहां पे दीपा बोला जाता है, और अंडमान एंड निकोबार में भी जो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है या फिर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इसको दीपा टर्म दे रखा है। मिल्पा, एंड in Mexico and Central America, slash and burn agriculture is known by the name of milpa. वेनेजुएला में कॉन्पुआ, ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल अफ्रीका में मासोल के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया में लादोंग के नाम से जाना जाता है, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में, इंडिया का एक स्टेट है मध्य प्रदेश, वहां पे बेवार या फिर दहिया के नाम से जाना जाता है, बेवार और दहिया। आंध्र प्रदेश में पोडू पेंडा पोडू पेंडा के नाम से जाना जाता है। जो मैं पामाडाबी बोल रही थी वो आपके उड़ीसा में बोला जाता है। झारखंड में कुरुवा के नाम से जाना जाता है। जो हिमालयन बेल्ट है वहां पे खिल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसको वालरे के नाम से जाना जाता है। सो देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में इसके लिए डिफरेंट नेम्स हैं। तो दिस इज primitive subsistence farming. Now the next type of farming is intensive subsistence farming. Now what do you mean by intensive subsistence farming? This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. ऐसा एरिया जैसे जो नॉर्दर्न आपका इंडिया है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये वाला जो एरिया है, बिहार, ऐसी जगह पे क्या है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। हाई पॉपुलेशन वाली जो जगह है वहां पे प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो फार्मिंग के लिए टूल्स जो है आपके प्रिमिटिव टूल्स भी यूज करते हैं और कुछ मोस्टली प्रिमिटिव टूल्स ही यूज किया जाता है। बट जो आप फर्टिलाइजर बोलते हो, यहाँ पे हाई डोसेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशंस आर यूज्ड, कि इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स, कैनाल्स वगैरह का यूज किया जाता है। बायोकेमिकल इनपुट्स मींस फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। व्हाई दे आर यूजिंग? बिकॉज दिस इज अ हाईली पॉपुलेटेड एरिया एंड दे नीड they need more crops, okay, and they cannot shift it to one place to the another place as this is a highly populated area. तो आपको लैंड भी आपको खाली नहीं मिलेगी। तो वो एक ही लैंड में जो फार्मर्स हैं वो एक ही लैंड में क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। बट उसके लिए वो जो यूज करते हैं, इनपुट्स यूज करते हैं, वो बायोकेमिकल इनपुट्स यूज करते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज जो है, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज करते हैं। So
देयर इज एन इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। ऑब्वियसली हम एक ही लैंड से क्या है, हम रीग्रो कर रहे हैं, बार बार हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं, बार बार हम एग्रीकल्चर उसी लैंड पे कर रहे हैं, उसको रिन्यू होने का टाइम नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ पे काफी प्रेशर है, ठीक है। Farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood। अब farmers के पास alternative source नहीं है, they have limited land, उसी same land से वो क्या कर रहे हैं, agriculture में maximum output को वो ले रहे हैं। So इस वजह से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड पे काफी प्रेशर पड़ रहा है। Okay, now next type of farming is commercial farming। Now what do you mean by the commercial? Commercial is something which is related to cash, ठीक है, which is related to market economy, market, ठीक है, कि हम प्रॉफिट के लिए जिस टाइप की जब तुम फार्मिंग करते हैं प्रॉफिट के लिए, तो उसे हम कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं, या फिर हम मार्केट फार्मिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। कमर्शियल मीन्स कैश। ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग वी आर यूजिंग higher doses of modern inputs like HYV seeds, high yielding varieties of seeds, chemical fertilizers, insecticides, pesticides, etc. And why we are using this? We are using this in order to obtain higher productivity। HYV seeds का use करते हैं, tractors का highly input मतलब जो tractors हो गए, harvesters, threshers जो है बहुत high technologically inputs का use कर रहे हैं हम, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि इनपुट्स ज्यादा से ज्यादा हो। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर varies from one region to another। अब जो ये कमर्शियलाइजेशन है, ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह पे डिपेंड करता है। जैसे कि हरियाणा पंजाब में जो कमर्शियल क्रॉप है वो आपकी कौन सी है, राइस है। बट उड़ीसा में जो क्या है, इट इज अ सबसिस्टेंस क्रॉप। सबसिस्टेंस क्रॉप मतलब कि कुछ टाइम के लिए हमने ये क्रॉप ग्रो की है, फिर थोड़े टाइम के बाद हम कोई और क्रॉप ग्रो करेंगे, ठीक है। तो जो कमर्शियलाइजेशन है डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में आप वो ग्रो कर रहे हो, ठीक है। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या हो रहा है, एक कुछ टाइम के लिए आपने सीरियल्स प्रोड्यूस कर लिए, फिर नेक्स्ट कुछ टाइम के लिए आप क्या कर रहे हो, कोई आप वेजिटेबल ग्रो कर रहे हो, कुछ टाइम के बाद आप कोई फ्रूट ग्रो कर रहे हो। तो ये सबसिस्टेंस है, चेंज करते रहते हैं। बट जो ये कमर्शियल क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप मीन्स मेन क्रॉप। पंजाब हरियाणा में जो आपका राइस है वो मेन क्रॉप है, और वो वही आपका जो उड़ीसा है वहां पे राइस को हम सबसिस्टेंस क्रॉप माना जाता है, मतलब वहां पे ये जो क्रॉप है कम यूज किया जाता है। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ी सी लैंड है और उस बड़ी सी लैंड में आप क्या कर रहे हो, बस एक ही टाइप की क्रॉप को क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। जैसे टी प्लांटेशन, दार्जिलिंग सिक्किम, या आप केरला, कर्नाटका केरला, वहां पे अगर आप जाके देखते हो जब प्लांटेशन होती है, प्लांटेशन फार्मिंग, वहाँ पे टी, कॉफी, बनाना, मतलब उस पूरे एक बहुत बड़े से लैंड में बस एक ही टाइप की आप क्रॉप्स क्या करते हो, ग्रो करते हो। सो इट इज ऑल्सो कमर्शियल, इट इज ऑल्सो कमर्शियल क्रॉप, ठीक है। In plantation, a single crop is grown on a large area. The plantation has an interface of agriculture and industry। Plantation जो normally plantation जो है इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जैसे कि अब कॉफी है तो कॉफी इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है। कॉफी को क्या किया जाता है, कॉफी को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, कॉफी लीव्स वगैरह को। और जो आपका बनाना है, बनाना को भी हम क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन में यूज कर रहे हैं, तो वो एज अ कैसे यूज किया जा रहा है, एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है। टी प्लांटेशन है तो टीज क्या कर रहे हैं, इतने बड़े एरिया में टी को ग्रो किया है, तो ऐसा तो नहीं है कोई एक पर्सन इतनी सारी टीज को टी यूज कर लेगा और वो उसे कंज्यूम कर लेगा।
नहीं, ये क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल है और एज अ टी क्या हो रही है, इससे प्रोड्यूस हो रही है और इससे कैश क्रॉप, कैश बन रहा है, कैश मिल रहा है, प्रॉफिट अर्न हो रहा है। प्लांटेशन cover large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. नॉर्मली जो प्लांटेशंस होते हैं वहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स और जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसका यूज किया जाता है, इनपुट्स का यूज किया जाता है, काफी लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है आपके प्लांटेशन में। यहाँ पे जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से वहां पे जाते हैं और वहां पे वर्क करते हैं। All the produce is used as raw material in respective industries. जितने भी प्रोड्यूस है, जैसे टी है तो टी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल टी लीव्स चला जाता है, वो एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। कॉफी इंडस्ट्री है तो कॉफी चला जाती है। बनाना की कोई आप बोल सकते हो बनाना चिप्स का कोई इंडस्ट्री है तो बनाना एज अ रॉ मटेरियल चला जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आपकी कौन सी इंडस्ट्री है और उस बेसिस पे वो एज अ रॉ मटेरियल उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या कर, रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में वो जितना भी प्रोड्यूस है एज अ रॉ मटेरियल यूज कर लिया जाता है। In India, tea, coffee, rubber, sugarcane, banana, etc. are important plantation crops. कुछ important plantation crops है, please do remember these crops, the names of the crops के इंडिया की कुछ important plantation crops कौन कौन सी है, तो याद रखना टी, कॉफी, रबर, sugarcane, banana, ये आपकी कुछ important plantation crops है। Tea in Assam and North Bengal, coffee in Karnataka are some of the important plantation crops grown in these states. Assam में टी, असम, दार्जिलिंग और नॉर्थ बंगाल में टी काफी प्रोड्यूस होती है। कॉफी जो है कर्नाटका में काफी प्रोड्यूस होती है, तो ये कर्नाटका की जो इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप अगर क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ऑफ कर्नाटका, तो यू वुड से कॉफी। ठीक है, तो असम की कौन सी इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है, टी। So, since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and markets plays an important role in the development of plantation. Obviously, commercial crop is basically related to the market, cash crops है, सारा industries तक as a raw material वो जाता है, तो transport and communication system काफी better होना चाहिए, काफी connecting है, developed एरिया में होता है। जो ये इंडस्ट्रीज है और मार्केट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांटेशंस को डेवलप करने में। सो जस्ट लुक एट दीज पिक्चर, दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स गिवन इन योर बुक। बनाना प्लांटेशन इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बनाना प्लांटेशन है। देखो सब जगह बनाना के पेड़ जो ट्रीज ही है वो ग्रो किए गए हैं। बैम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट, बैम्बू प्लांटेशन, ठीक है, अब स्टिक के लिए बैम्बू का यूज किया जाता है। बैम्बू प्लांटेशन को यहाँ पे क्या कर रखा है, ये आपके पिक्चर गिवन है। Okay, so class, this is all about today. Go through these topics, and if you face any problem, do let me know. We have done with the types of farming today. What is agriculture, and after that we have talked about types of farming. 3 types of farming are there: intensive subsistence farming, primitive subsistence farming, and commercial farming. Subsistence farming में कुछ crops change होते रहते हैं, small patches of land में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। बट इन कमर्शियल फार्मिंग एक लार्ज मतलब मोस्टली ये मार्केट क्रॉप होती है। ठीक है, प्लांटेशन जो होता है वो अंडर कमर्शियल फार्मिंग के अंडर ही आता है, जहाँ पे हम एक बड़े से लैंड में एक ही टाइप की क्रॉप को ग्रो करते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एवरीबॉडी।